हेलो गाइस, एक दूसरा वीडियो लेके हाजिर हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तू व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझे पता है कि इसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करूँगा जो सीरियस है और जिसको हमें सुधारना है। जनरली मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करता हूँ और ये चैनल इंटरनेशनल फ्रेंडशिप के लिए है, लेकिन इंटरनेशनल इमेज को सुधारने के लिए कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रॉब्लम को हम पहले आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। तो ये एक यूक्रेनियन ब्लॉगर है जो इंडिया दिल्ली में आए थे और उन्होंने एक व्लॉग बनाया। बहुत लंबा वीडियो है, 45 मिनट का। और रिपोर्टिंग अगर बोलूँ तो न्यूट्रल रिपोर्टिंग है, बहुत सारे बायसेस तो है ही, लेकिन शुरू में उन्होंने ज़रूर स्लम टाइप इंडिया से शुरू किया, लेकिन बाद में ये भी दिखाया कि कैसे पॉश एरियाज़ है और कैसे एक इंडिया का एक अलग साइड है, ये भी इस वीडियो में दिखाया गया। तो इन जनरल ये एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग था, लेकिन यहाँ पे एक रशियन लड़की, प्योर रशियन तो नहीं है, कुछ काफकाज का डिसेंडेंट है, वैसे तो मिक्स्ड रेस है लेकिन रशियन सिटीजन है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात कही जो मैं भी बहुत दिनों से कहना चाहता था। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। Это нормальная история, что вот люди спят вот так на улицах? Это как бы он более богатый, у него много чего в данный момент, хотя он не покупал. Государство борется с этим. Борется, наверное, последние 20 лет. Я читала историю, даже люди рассказывают, и любой индус об этом знает. В 2010 году государство каждой бездомной семьи дал по квартире. Построили многоэтажные дома, Газиабад, Гургаон, Ноида. Там, если вы были или нет, вам советую. Знаю. Там многоэтажные дома. И есть окраинных места, то есть такие дома заброшенные, если вы заметили или нет. Вот. Эти дома были построены для этих людей, бездомных людей. И каждой семье они давали по количеству членов семьи дома, двухкомнатные, однокомнатные. И через 6 месяцев, когда пришли проверить люди государства, в домах было пусто, а некоторых уже жили чуть ниже среднего уровня люди. И узнали, что все, практически все, продали свои дома за гроши и продолжили жить на улице. Почему? Почему? Потому что каждое утро, вот видите, воду, государство литрами на одного человека от 2 до 4 литров воды привозит. Есть определенные места, где они ходят, чтобы поесть. У тихо можно кушать каждый день. И каждое утро на машине развозят еды бездомным, одежда и все, что надо для человека, лекарства. Есть государственная больница бесплатная, она реально огромная и буквально бесплатная. И есть мандиры, то есть храмы разные, туда заходят, сделают пару раз намазки и что-нибудь такое, и получают бесплатную еду. Им комфортно жить таким образом за счет, скажем, нормальных людей, которые работают 10 часов, 12 часов, а здесь режим работы другой, отличается от России. То есть по сменам работать есть за раз 20 часов, 24 часа, 12 часов работают, меньше никто не работает. Те работают, зарабатывают, а за счет их налога эти люди, им удобно жить. Государство им даже обучение бесплатное делает. В университете, колледжах, школах, даже в детсадах все бесплатно для них. Еще они все время орут, кричат, что их не защищают, их как бы право нарушают и все остальное. Если я в течение года хоть что-то увидела, я вам скажу, это самый неблагодарный народ, и они умышленно таким образом живут, и они умышленно выбрали роль такого бедняка, скажем, ущемленного такого человечка, потому что им выгодно, ничего не делают по жизни. Даже сигареты государство дает. Вы понимаете это? दोस्तों, गरीबी के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई गरीब फैमिली में जन्म लेता है और वो बाय बर्थ गरीब होता है। कई लोगों को बीमारी होती है और वो ट्रीटमेंट कराते कराते गरीब हो जाते हैं। कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है लेकिन किसी कारणवश उनका बिजनेस नहीं चल पाता है और वो गरीब हो जाते हैं। और ये सारे लोग जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं
लेकिन ख़राब किस्मत या हालातों की वजह से वो टेम्पोरेरी गरीब है। टेम्पोरेरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेहनती है और जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो कोई ना कोई रास्ता इन दी एंड तो ढूंढ ही लेता है, लेकिन उनके इस डिफ़िकल्ट टाइम में जहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत है उस टाइम पे हमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए और इनके लिए हमारी पूरी सिंपैथी और हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन फिर आते हैं इस कैटेगरी के लोग जो फिज़िकली फुल्ली कैपेबल है लेकिन जानबूझ के गरीब बनते हैं, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, सोसाइटी को ये किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, बस बैठे बैठे दूसरों के इनकम पे पैरासाइट की तरह जीते हैं, सरकारी प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठाते हैं और सोसाइटी के ऊपर एक बर्डन बनते हैं। इनसे मुझे कोई भी सिंपैथी नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ सोसाइटी के ऊपर एक बोझ ही नहीं है, ये हमारी इंटरनेशनल इमेज को बहुत नीचे लेके आता है। अगर भारतीय सरकार चाहता या फिर चाहे तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ओवर पॉपुलेशन, स्लम्स, पॉवर्टी, ये सिर्फ 1 से 2 साल में मिटाया जा सकता था। लेकिन सच बात तो ये है कि सरकार और कॉरपोरेट्स ये चाहते ही नहीं है, वो इनफैक्ट चाहते हैं कि ये गरीब पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाए अपने फ़ायदे के लिए। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताता हूँ। पहले आते हैं कॉरपोरेट्स और बड़े कंपनीज़ पे। आपने सुना ना उस लड़की ने क्या कहा कि हमारे वर्किंग शिफ्ट्स इन रशिया और इंडियन जो वर्किंग शिफ्ट्स है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। सिर्फ रशिया ही नहीं, यूरोप और कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ भी उसी कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पे एक फिक्स शिफ्ट होता है 8 घंटे का, उससे ज़्यादा कोई भी कंपनी अपने वर्कर से काम नहीं करा सकता, और अगर कराते हैं तो हर पर आवर उनको एक बहुत अच्छी खासी पेमेंट मिलता है। मैं जब रशिया में इंग्लिश टीचर था तब मुझे इंडिविजुअल क्लासेस के लिए पर घंटा 1000 रूबल मिलता था, ग्रुप क्लासेस के लिए मुझे 2000 रूबल्स मिलते थे पर आवर। इसके अलावा मुझे रहने के लिए अलग से फ्लैट दिया गया था जो मेरे लिए पूरा फ्री था। तो दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करके मैं महीने में 120 से 130 हज़ार रूबल्स कमाता था। मैं चाहे तो इससे ज़्यादा भी काम करके ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन मेरे लिए 2 घंटा काम करना भी इनफ था। मेरे स्टूडेंट्स में से कई सारे रशियन इंजीनियर्स थे, हमारे इंजीनियर्स से काफ़ी अलग। हमारे इंजीनियर्स जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं और बहुत ही टायर्ड दिखते हैं, उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन एक दिन मैंने अपने एक रशियन इंजीनियर से पूछा कि आप तो आजकल वीकडेज़ में भी क्लास करने आते हैं, तो आपके जॉब का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उनका जो टास्क था कंपनी की ओर से वो उन्होंने 15 दिनों में ही कंप्लीट कर लिया और इसीलिए बाकी के 15 दिन उनके लिए छुट्टी है। मैं तो सुन के हैरान रह गया। जिस काम के लिए यूरोपियन वर्कर्स को 2 लाख से ज़्यादा मिलते हैं वही काम यहाँ पे 20,000 से करवाया जाता है। और ये ओवर पॉपुलेशन का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं ये कॉर्पोरेट्स और वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तुम्हें कम सैलरी में काम नहीं करना, ओवर टाइम नहीं करना, तो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाहर और भी 1000 इंडियंस उसी पोस्ट, उसी काम और उसी लो सैलरी के लिए भूखे दौड़ रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन एंड पुअर पॉपुलेशन अलाउज दिस कॉर्पोरेट्स टू एक्सप्लॉइट द ब्लड आउट ऑफ द वर्कर्स। अब आते हैं हमारे माननीय पॉलिटिशियंस पे। जब फ्री की रोटी कपड़ा देके वोट खरीदा जा सकता है तो क्यों नहीं। इंटेलिजेंट जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। इंटेलिजेंट और एडुकेटेड लोग सरकार से हज़ारों सवाल पूछेंगे, उनसे जॉब मांगेंगे, झूठे प्रॉमिसेस के बहकाव में नहीं आएंगे, डेवलपमेंट दिखाने को कहेंगे और उसके बाद अच्छे से एनालिसिस करके ही वोट देंगे। ऑन द अदर हैंड इन गरीब लोगों को बस फ्री का रोटी कपड़ा दे दो और वो सिर्फ वोट ही नहीं देंगे इसके लिए, बल्कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपसी झगड़े में ये एक दूसरे को काटने के लिए भी रेडी है। बाद में विनिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स एक प्याले में बैठ के चाय पीते हैं और मरते हैं ये गरीब लोग। जिस दिन कोई सरकार ओवर पॉपुलेशन को कर्ब करने के लिए मेजर्स लेंगे उस दिन समझ जाना कि सच में इस बार एक अच्छा सरकार आया है। अगर मैं पावर में होता ना तो सबसे पहले एक ऐसा रूल बनाता कि जिन लोगों का इनकम 10,000 से कम है वो 1 से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। वैसे मिडिल क्लास और हाई क्लास जो इंडियंस हैं उनके लिए ऐसे लॉ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास और हाई क्लास इंडियंस को देखें तो वो वैसे भी एक न्यूक्लियर फैमिली में जीते हैं, 1-2 से ज़्यादा बच्चा तो पैदा करते ही नहीं है वो, उनको उनमें इतना अवेयरनेस पहले से ही है। ये जो गरीब लोग हैं और सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी के लोग जिनका पॉलिसी हम दो हमारे 25, मेन प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से आता है और इसीलिए इनके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि इनका इनकम अगर 10,000 से कम है तो इनका 1 चाइल्ड पॉलिसी है, लेकिन साथ में इसके साथ ही और एक रूल भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और वो है एक स्ट्रिक्ट लॉ फीमेल फोएटिसाइड को कर्ब करने के लिए। ये 2 लॉज अगर स्ट्रिक्टली और प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो ना तो 1-2 साल में पूरा BBC CNN का इंडियन कंटेंट ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको फिर इंडिया में दिखाने के लिए एक भी स्लम नहीं बचेगा। दिस सेक्शन ऑफ पीपल डू नॉट डिजर्व डेमोक्रेसी। इनके लिए स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ेगा, लेकिन वो तभी होगा जब इंडिया में एक ऐसा सरकार आएगा जो सच में इंडियंस की भलाई चाहता हो। लेकिन जब तक ऐसा सरकार नहीं आता हमें खुद ही मेजर्स लेने पड़ेंगे और इसके लिए जब भी आप फाइनेंशियली किसी गरीब को हेल्प कर रहे हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही कीजिए। क्या वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, क्या उसको सच में ज़रूरत है या फिर फोकट की लाइफ जीना चाहते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद ही किसी को फाइनेंशियल हेल्प करना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि शायद आप एक छोटा सा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही छोटे छोटे 2-3 रुपए ले लेके
कुछ भी काम नहीं करेगा और सोसाइटी के ऊपर एक बोझ बनेगा। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।